Hello everyone, we are getting some breaking update. Jai Shah has announced Gautam Gambhir as Team India head coach. So the wait is finally over because Jai Shah has announced Gautam Gambhir as the Team India head coach. We have been speculating this thing for quite a while now. For a month or so, there have been talks going on around cricketing circuit that Gautam Gambhir will be Team India's head coach. There might be some other names as well, but Gautam Gambhir was the front runner always to Yeah. be in this position, and the announcement has been official now with BCCI Secretary Jay Shah making it official on Twitter. I have Soumya Kapoor with me. Soumya, how big is this the news for Indian cricket? It was always on the cards. Yeah. The moment Gigi's name popped up, it was on the cards, and finally the confirmation has come. We had been waiting for this, and Gautam had I just had a word with some officials in the Cricket Association of Bengal who confirmed me that he did shoot a video for Kolkata Knight Riders on Saturday. So that made more of a sense than he was in Mumbai. So the dots were connecting, and now as we have been getting reports that KKR have approached Rahul Dravid for the mentor's Rahul role as Dravid, well, right? because that position is also kind of vacant. So that's kind of a swapping in the in the franchise and in Team India. So yeah, but it's a great news. This finally the news is out. We have been waiting for it, as I said, and it's a great step ahead. Yeah, Gautam, what he's done as a captain for KKR, as a player for India, two-time World Cup Right. winner champion, World Cup winner, has won IPLs for Kolkata Knight Riders Right. as a captain, then as a As a mentor, captain, as a coach as well. as a coach, yeah, in the coaching staff rather, so he has been around that circuit for a while. He knows how to treat players of different stature, because when you're around an IPL franchise, you know that you have to deal with different characters, and that is what Gigi has been doing with the LSG as well. He was there at LSG as well. He did a phenomenal job there too. So yeah, it's a great news, and the positivity that has come after that T20 World Cup 2024, we can be really assured that we can get a lot of more trophies, moving ahead. So, Soumya, Gautam Gambhir has been the coach with LSG for 2 years. Then he went on to KKR for 1 year stint as a head coach. So, how do you think are these experiences going to play a role when he gets into that Indian dressing room? Because though IPL is a very high profile tournament, but there are quite differences in IPL. There you see some of the players who are coming up the stage who are very young and have not played too much of professional cricket in their career. A few players do come from that category. So Yeah. the coaching gets pretty different when you are coaching a IPL side, because there are some legends as well, and on the other side there are some players, as I just mentioned, who are just starting their Yeah. career. And when you go get into the Indian team dressing room, everyone has played quite a few games, everyone is in the circuit around for quite a few years. So how different will these two things will be, and how will Gambhir's experience coaching two big IPL sides help him with the Indian team? No, that's what I've been saying. That the experience plays a lot of role, because, as I said, you deal with different characters when you are around an IPL side. When you are in that coaching staff, or when you are leading, when you are into the leadership group. So you have a lot of characters around, and you deal with them in different ways. So now, uh, you have stars in Indian cricket team, and Gauti is himself a star. So कहीं ना कहीं वो experience बहुत काम आने वाला है. And as I said, the positive aspect is that this team has won a T20 World Cup just now, and then moving into the next phase will be a bit easy. And also, the shorter formats, the senior players have already taken that decision of stepping aside. So that is more of a easy transition that GG will have, because in ODIs and tests he knows, the kind of players Rohit and the Jadejas and the Virat are. He knows, they can do the job themselves on their given day. I feel it was more about T20 cricket, where we needed that transition, but the transition has already started, and it's going to be very easy for GG from here on. Right. I think Jaisha has also mentioned something similar in his tweet when he says that the modern day cricket is evolving rapidly, and Gambhir has witnessed this changing landscape with the IPL teams, and now he will
witnessed something very similar with the Indian team as well because of the transition you just mentioned. But I would like to dwell a bit more into ODIs and tests, Soumya. Obviously, Gigi is a big name in Indian cricket, but he does not have that kind of experience coaching big sides or even a domestic side for that matter. So how do you think will that thing impact the team India and especially in the longer formats? Also, if we see a few big tournaments are coming up, the Champions Trophy is coming up next year. We also have the WTC final in the next year, which India is highly likely to qualify for. So how will Gambhir's present impact those two formats for Team India? No, yeah, see, at that level, it's about managing the side and the kind of experience that the players who will be around him have. They understand the kind of importance that this man brings onto the table. So I don't think it's going to be a lot of problems. But see, when you are around a circuit, when you're around a team, there are certain things, there are certain contradictions, which is fine. So that is pretty fine. So that's okay. And I just feel that it's going to be an easy, not an easy, but it's going to uh, a easy passage for Gambhir to be around that team. Okay. With this, I have Ranjit Mishra joining, who is Cricket Next lead producer. Hello, Ranjit. This is a big news for Indian cricket as of now that Gautam Gambhir has been selected as Team India's head coach. How do you see this news for Team India, and how good is this news for Indian cricket overall? Yeah, Bansal, this had to happen, and it's a bit delayed from BCCI. I guess आना तो था ये खबर, और मीडिया में भी आज ये खबर सबसे ज़्यादा चल रही थी कि ये डिले क्यों हो रहा है, क्यों देरी हो रही है. और I have read several articles on this, and many have written that it's salary negotiation जो गौतम गंभीर के साथ चल रहा है बीसीसीआई का, एंड प्रोबेबली ही हैज आस्क्ड फॉर मोर मनी देन राहुल द्रविड़. राहुल द्रविड़ को जहां तक मुझे पता है, मेरे सोर्सेज बताते हैं 12 करोड़ उनकी सैलरी थी एवरी मंथ. ही वाज ड्रॉइंग 12 रुपीस. तो इससे ज़्यादा रकम की मांग की गई थी, ऐसी खबरें हैं रिपोर्टेडली. हम इस पे कोई मुहर नहीं लगाते और इससे हम कोई अप्रूवल भी नहीं देते इस खबर को. हमारे सोर्सेज ऐसा कुछ नहीं बता रहे हैं, लेकिन इस तरह की खबरें हैं. तो इससे ये भी पता चलता है बंसल की पब्लिक को, फैंस को, इंडियन फैंस को स्पेशली किन चीज़ों में ज़्यादा मज़ा आता है. उनकी ज़्यादा रुचि इस बात में है कि हाउ मच गौतम गंभीर इज़ गोइंग टू टेक अवे फ्रॉम बीसीसीआई, एंड राहुल द्रविड़ को कितना मिल रहा था, डिले क्यों हो रहा है, और इन सब के पीछे और क्या कहानी चल रही है. तो ठीक है, गौतम गंभीर आ गए. आईपीएल के साथ एज अ कोच उनका बहुत ही शानदार रहा है रिकॉर्ड अभी तक, और लेट्स होप कि ही कंटिन्यू विद दोज मैग्निफिसेंट रिकॉर्ड्स विद इंडियन टीम एज वेल. लेकिन अगर हम पब्लिक की बात कर रहे हैं बंसल, तो हमें शायद ये बात करनी चाहिए कि ड्रेसिंग रूम में क्या तबदीली होगी गौतम गंभीर के आने से. एग्जैक्टली मेरा यही सवाल होने वाला था. आप जो सैलरी के बारे में बोल रहे हैं, काफी अच्छे इंसाइट्स थे रंजीत, बट मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि रिसेंटली रोहित शर्मा ने राहुल द्रविड़ के लिए बोला था कि राहुल द्रविड़ ने काफी बार अपने खुद के इंस्टिंक्ट साइड में रख के प्लेयर्स को जो करना था, लड़कों को जो करना था, वो करने का मौका दिया. उनको जिस तरह से खेलना था वो ज्यादा प्रायोरिटाइज किया खुद के थॉट से ज्यादा. सो जब गौतम गंभीर इंडियन ड्रेसिंग रूम में आते हैं, तो क्या सेम चीज कंटिन्यू रहेगी या गंभीर का वर्किंग प्रोसेस कुछ और रहेगा? ही विल वांट द टीम टू फॉलो हिम अ बिट मोर, टू ओबे हिम अ बिट मोर rather than trying their own thing, rather than experimenting their oन थिंग्स that they feel would be right in the middle. ये आपको क्या लगता है, कुछ चेंजेस दिखने मिलेंगे इस तरह के, या फिर सेम चीज रहेगी जो द्रविड़ के टाइम में थी? ये मैं दोनों से ये सवाल करना चाहूंगा. पहले रंजीत. इसमें मुझे लगता है बंसल की केकेआर में जिस तरीके से कोचिंग की है गौतम गंभीर ने, उस पर हमें नज़र डालनी चाहिए. काफ़ी फ्री स्पेस दिया है उन्होंने हर प्लेयर को अपनी कोचिंग के दौरान, और जिस खिलाड़ी ने जो भी करना चाहा उनको खुल के करने का मौका दिया गया. शायद यही वो कंटिन्यू रखेंगे विद टीम इंडिया एज वेल. और ड्रेसिंग रूम में भी देयर वुड बी नो कन्फ्रंटेशन एंड नथिंग दैट पीपल वुड probably love to see or love to get something from the dressing room. ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है. गौतम गंभीर इस तरह के शख्स बिल्कुल नहीं है जैसे उनको पेंट किया जाता है. जितना मैं गौती को जानता हूँ उससे तो यही पता चलता है. केकेआर के साथ भी जो उनका स्टेंट अब तक रहा है,
कोच के तौर पर, उससे भी यही पता चलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला जिसमें कुछ मसाला मिले। गौती ने पहले भी क्लियर किया था जब विराट कोहली को लेकर उनसे सवाल पूछा गया था कि मैं आपको कोई मसाला नहीं देने वाला हूँ। तो बिल्कुल ऐसा ही रहेगा और क्रिकेट पे फोकस होगा, प्लेयर्स को भी काफ़ी स्पेस मिलेगा और ठीक उसी तरीके से परहैप्स वो इंस्पायर कर पाएंगे इंडियन टीम को जैसे राहुल द्रविड़ ने किया है अपने स्टेंट में बंसल। Okay. Soumya, what are your thoughts? What do you think? Will there be any changes in the dressing room, or it will continue to remain the same? No, I'm on the same page as Ranjit यार, because जो changes होने थे ना वो छोटे फॉर्मेट में होने थे और वो रविंद्र जडेजा और रोहित शर्मा, विराट कोहली तीनों ने अपना बिल्कुल सही डिसीजन लेके ना स्टेप असाइड कर दिया है। एक दो प्लेयर्स प्रॉब्ली और इधर उधर हो सकते हैं एंड आई जस्ट फील वो एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट उनका नहीं आया है बट वो हो चुका है ऑलरेडी। सो वो वहाँ एक ट्रांजिशन और एक सडन चेंजेस आपको देखने को शायद मिल सकते थे, वो पहले ही हो गया। टॉकिंग अबाउट ओडीआईज एंड द WT एंड द टेस्ट क्रिकेट, you have a WTC, you have a चैंपियंस ट्रॉफी, उसके बाद 2027 का वर्ल्ड कप भी है। तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा चेंजेस देखना नहीं भी चाहोगे बिकॉज यू विल हैव टू ट्रैवल टू ऑस्ट्रेलिया और रोहित शर्मा और या रविंद्र जडेजा और विराट कोहली और रवि अश्विन के बगैर आप ऑस्ट्रेलिया जाके टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल सकते। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द यंगस्टर्स, लेकिन वो एक चीज आती है। सो वो जो चेंजेस चाहिए थे वो ऑलरेडी हो गए हैं एंड एज रंजीत जस्ट मेंशन्ड, जितना गौती को मैंने भी समझा है, ही इज समबडी हु जस्ट लव्स टू वर्क टुवर्ड्स द गेम। अगर उनको लग रहा है कि उनका ओपिनियन जो है वो बैकफुट पे रख के टीम के हित में रह सकता है, टीम के का कुछ शायद फायदा कर सकता है, प्रॉबेबली वो रिजल्ट ना दे वो जो देख रहे हैं, लेकिन वो फायदा कर सकता है, ही विल डू दैट, ही इज ऑफ दैट सॉर्ट्स। तो कहीं ना कहीं ये जितने भी लोग हैं ना यार, ये सब टीम की तरफ देखने वाले लोग हैं। ऐसा नहीं पहले नहीं थे, लेकिन ये बहुत बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है। दे नीड ट्रॉफीज इन द कैबिनेट, दे नीड उनको इंडिविजुअली या उनको कैप्टेंसी की ट्रॉफी नहीं चाहिए कि इस कैप्टन के अंडर जीते, उनको चाहिए टीम इंडिया जीता, लीड कोई भी कर रहा हो उस समय। They are of that sort, वो दिख गया है हमें। और as I've been saying, exactly as I've been saying, even 2023 ODI World Cup, 24 T20 World Cup ने बहुत पॉजिटिविटी लेकर आया है और यहाँ से जो है ना पैसेज इसलिए थोड़ा इजी हो जाएगा गौती के लिए। Yes, the workload is very much. He'll be on the road because बहुत सारे टूर्नामेंट्स लाइंड अप हैं। अब श्रीलंका से शुरू होगा और बहुत सारी चीज़ें आपको खेलनी है, बहुत ट्रैवल करना है, तो बहुत एक टफ टास्क है, लेकिन इट्स गोइंग टू बी एन इजी पैसेज फॉर हिम एज फार एज अ टीम एनवायरनमेंट इज कंसर्न। और दो तीन दिल्ली के लड़के हैं यार, वहाँ पर मजा आएगा। बंसल, मैं इसमें एक और ऐड करना चाहूंगा। रंजीत आप ऐड कर देना, मैं सिर्फ एक चीज बोलना चाहूंगा, मैं देखना चाहता हूँ हर्षित राणा इन द इंडियन टीम अंडर गौतम गंभीर, वो है मेरा सपना। काफी इंटरेस्टिंग होगा ये कॉम्बिनेशन अगर देखने को मिलता है। रंजीत, आप कुछ बताना चाह रहे थे? ये देखने की बात होगी। मैं ये कहना चाह रहा था बंसल कि अगर आप पूरे पैटर्न को देखें, हाउ गौतम गंभीर डील्स विद पीपल, तो आपको पता चलेगा कि किसी इंडिविजुअल प्लेयर के साथ उन्होंने कभी कोई डीलिंग की ही नहीं। उनकी पूरी की पूरी डीलिंग जो है वो पूरी टीम के साथ है। इसके कहने के पीछे एक रीजन जो बहुत सिंपल है, जो हमने अपने कई बार देखा है, वो किसी इंडिविजुअल प्लेयर के लिए कभी कोई ट्वीट भी नहीं करते सोशल मीडिया पे। आपको कभी कुछ नहीं मिलेगा किसी इंडिविजुअल प्लेयर के बारे में, वो हमेशा टीम की बात करते हैं। चाहे कोलकाता नाइट राइडर्स का चैंपियन बनना हो या टीम इंडिया का वर्ल्ड कप जीतना हो, उन्होंने ना रोहित शर्मा की बात की, ना विराट कोहली की बात की, ना ही जसप्रीत बुमराह की बात की। दोनों ने विराट कोहली ने, रोहित शर्मा ने और रविंद्र जडेजा ने रिटायरमेंट ली T20I से, उन्होंने उस पर भी कोई पोस्ट नहीं किया, लेकिन हाँ टीम इंडिया ने जीत दर्ज की, उस पर उन्होंने पोस्ट डाला एंड ही कंग्रेचुलेटेड द टीम। सेम KKR के लिए भी अगर आप देखें तो सेम ऐसा ही हुआ। KKR चैंपियन बनी और उन्होंने KKR को बधाई दी, कंग्रेचुलेट किया एंड नथिंग एल्स। किसी स्टार के बारे में, किसी प्लेयर के बारे में कोई कमेंट उनकी तरफ से नहीं आया। यहाँ भी ऐसा ही होगा। आप विराट कोहली या रोहित शर्मा या बुमराह के बारे में उनकी तरफ से कोई कमेंट आता हुआ नहीं देखेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में। अब तो वो बैठेंगे, पीसी में बैठेंगे और उनको जवाब भी देना होगा, लेकिन गौती की तरफ से ऐसा ही कंटिन्यू होगा। कभी कभी इंडिविजुअल प्लेयर्स की वो बात करते हैं। एक बार कोई पाकिस्तान के क्रिकेटर ने थोड़ा सा मॉक करने की कोशिश करी थी विराट कोहली को, तो सीधा उनको बोला था कि बहुत जितना अपने मैच खेले ना उससे ज्यादा तो 100 है उसकी। तो जिम्बाब्वे से मैच जीत के थोड़ा बात मत किया करो, ब्रॉडकास्टिंग में बोला था। तो वो बात तो करते हैं, लेकिन उनका तरीका अलग है किसी और को स्लेज करने का।
गौती को एक ऐसे फॉर्मर प्लेयर के तौर पे और क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर और कोच के तौर पे देखा जाता है। एमपी भी रहे हैं ईस्ट दिल्ली से बीजेपी के। उनका अप्रोच काफी नेशनलिस्टिक रहा है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं। तो अगर पाकिस्तान की तरफ से उन्हें कोई स्लेज करने की कोशिश करेगा तो जवाब शायद ऐसे ही मिलेंगे जैसा सौम्या बता रहे हैं। ये जवाब तो सबको पसंद भी आएगा सौम्या। मुझे तो बहुत आता है। काफी एक टीम पर्सन है वो, हमने बहुत बार देखा है जब उन्होंने टीम के लिए बैटिंग भी की थी या जब कुछ टीम्स के साथ कोचिंग स्टिंट भी था उनका, जब वो डीडीसीए का भी पार्ट थे तब भी वो सारी चीजें देखने मिली। बट मैं 2 प्लेयर्स की स्पेसिफिक बात करना चाहता हूँ इधर, जिसके बारे में लास्ट 6-7 महीनों में काफी बातें हुई है। क्या आपको लगता है कि श्रेयस अय्यर और ईशान किशन का जो अभी बीसीसीआई और टीम इंडिया के साथ जिस तरह का इक्वेशन है वो थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है? डू यू सी दोस 2 प्लेयर्स कमिंग बैक फॉर टीम इंडिया इन ऑल द फॉर्मेट्स? वी आर एक्सपेक्टिंग कि अय्यर ओडीआईज में तो खेलेंगे ही खेलेंगे, बट मोर देन अय्यर, ईशान किशन कोई भी फॉर्मेट में काफी टाइम से खेले नहीं है इंडिया के लिए। डू यू सी दैट थिंग चेंजिंग विद गंभीर कमिंग इन, या उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? Soumya. Soumya will take this forward? Or Yeah. Are you asking me? I'll take this forward. Yeah. See, I'll be very honest with Gauti's mindset up here. वो ईशान को सिर्फ बोलेंगे, बॉस यू विल प्ले all the Ranji games, all Vijay Hazare matches, all smacked, perform there, you're in the team. Else you're not coming. That's it. तो श्रेयस को T20 में मत लेकर आओ क्योंकि वो कंफ्यूजन्स क्रिएट होंगे इन द लाइनअप। कंफ्यूजन से मेरा मतलब है लाइनअप आप कैसे बनाओगे ना, आपको बहुत कंफ्यूजन होगा अभी, क्योंकि हार्दिक आएगा, सूर्य आएगा, सो यू हैव अ लॉट ऑफ पीपल हु विल बी कमिंग इन, चेंजेस बहुत ऑलरेडी होने। लेट हिम प्ले द ODIs, let him play the test cricket and prepare Shreyas to play test cricket in overseas conditions. वो जीजी करेंगे क्योंकि obviously he was a captain when KKR won अभी 3 महीना पहले। तो I see Shreyas coming in the one days and the test cricket, test squad 11 शायद थोड़ा मुश्किल हो सकता है, but yes in the squad and ODIs obviously he'll be there. T20 it's fine यार, अगर वो नहीं भी खेल रहे that is okay. Ishan will have to play now, तो पक्का he will have to play domestic cricket to make a comeback and I'm sure he is also looking towards that because जब वो IPL से पहले पे DY पाटिल खेलने गया था यार, तो ऐसा नहीं है वो ठीक है एक बच्चे ने एक ब्रेक मांगा because he just things just got a toll on him, तो आपने इतना उसका बखेड़ा खड़ा कर दिया, वो गलत चीज थी। होता है ऐसा, मेंटल हेल्थ इज समथिंग दैट वी शुड टॉक अबाउट। वो हुआ, दैट्स फाइन। Now he's back. He played the IPL. He played DY Patil. Now he'll be playing for Jharkhand. And Jharkhand is a very good team. They play with very very good teams. उनके pool में बहुत अच्छे, बहुत interesting results देने वाले teams रहते हैं, अच्छे counterparts हैं उनके, तो बहुत मजा आएगा। It's just that he will have to play all the games across formats, right. That is, and which is fine, yeah, which is okay. That's how you should grind and come back. What's the deal? What's the big deal about it? It's fine. Right. Sachin's and the Gangulys have done this, yeah, that's fine. Right. गांगुली के साथ भी बहुत हुआ था इनफैक्ट ये चीज। रंजीत, मैं आपकी भी राय जानना चाहूंगा ये चीज पे। आप किस तरह से देखते हैं ये चीजें जो सौम्या बोल रहे हैं वही चीज होगी क्या? ईशान किशन को डोमेस्टिक में ग्राइंड करके वापस आना होगा या फिर डायरेक्टली उनको टीम इंडिया में कोई चांस मिलने के चांसेस है? देखिए, द्रविड़ के कोचिंग के स्टाइल को अगर देखें तो उन्होंने बहुत ज्यादा चेंजेस टीम या प्लेइंग 11 में तो नहीं किए हैं। KKR के साथ भी पूरे सीजन यही होता रहा, बहुत कम उन्होंने चेंजेस किए, तो बहुत कोई मेगा चेंज तो नहीं दिखेगा कि श्रीलंका टूर पे उन्होंने अपना स्टेंट स्टार्ट किया और वहाँ पर कुछ बहुत बड़ा फेरबदल कर दिया, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन इसके दूसरे पहलू को अगर ईशान किशन की जगह दूसरे एक पहलू को देखें टीम के जो सिनेरियो है, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन भी है गौतम गंभीर के लिए टू टेक द चार्ज ऑफ द टीम, क्योंकि रोहित, विराट और जडेजा ने ऑलरेडी T20 से रिटायरमेंट ले ली है। कुछ और प्लेयर हैं लाइक शमी एंड आर अश्विन, दे आर इन देयर मिड 30s, तो वो भी रिटायरमेंट की तरफ ही बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक नई टीम लेकर आने, बनाने, बिल्ड करने की ज़रूरत होगी और बहुत जल्द होगी। तो इस ज़रूरत को पूरी करने के लिए गौतम गंभीर क्या कदम उठाएंगे? क्या उन्होंने इस बार जो कोलकाता नाइट राइडर्स का सीज़न था उसमें कुछ ऐसा किया है जिससे हमें पता चलता हो कि हाँ, कुछ ऐसे प्लेयर आने वाले हैं जो टीम को फिर से
बड़ी बड़ी जीत और बड़े बड़े ट्रॉफीज की तरफ लेकर जाएगी, ये देखना ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे लगता है होगा। और अगर इस तरीके से टीम बिल्ड करने की ज़रूरत होगी तो ईशान किशन जैसे यूथ और यंगस्टर्स को तो ज़रूर वो सामने लेकर आएंगे। ओके ओके, तो हमें एक बड़े सवाल का आंसर मिल गया है गौतम गंभीर के हेड कोच बनने के साथ साथ, बट उसके साथ काफी और क्वेश्चंस आ गए हैं। देखना ही होगा कि आगे जाके क्या होता है टीम इंडिया के साथ, किस तरह गौतम गंभीर टीम को आगे लेकर जाते हैं। एज ऑफ नाउ वी नो कि रोहित शर्मा ही कैप्टन रहेंगे अगले 1-2 साल तक एटलीस्ट टेस्ट और ओडीआईज में। तो काफी इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है एंड होपफुली गौतम गंभीर टीम को काफी अच्छी तरह से आगे ले जाएंगे और काफी इंडियन क्रिकेट को देखने में काफी मजा आएगा इन द नियर फ्यूचर। थैंक यू सौम्या, थैंक यू रंजीत फॉर ऑल योर इनसाइट्स। जीजी ने भी ट्वीट कर दिया है। जीजी ने भी ट्वीट कर दिया। I'll just flash that tweet. He's thanked and acknowledged the post that he's got. So I'll just flash that on the screen. Sure. Yeah. So India is my identity and serving my country has been the greatest privilege of my life. I'm honored to be back, a bit wearing a different hat. But my goal is the same as it has always been, to make every Indian proud. The men in blue shoulder the dreams of 1.4 billion Indians, and I will do everything in my power to make these dreams come true. Yeah, so as we just mentioned, काफी nationalistic पर्सनालिटी है गौतम गंभीर की, और ये ट्वीट से भी सामने आ रहा है। He has not spoken too much about इंडियन क्रिकेट और द कोच और जय शाह इधर फॉर दैट मैटर, जिन्होंने उनको अपॉइंट किया है, उन्होंने सिर्फ इंडिया और इंडिया के लोगों की बात की है। सो क्वाइट एन इंटरेस्टिंग थिंग दिस, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग वी आर गोइंग टू विटनेस क्वाइट एन इंटरेस्टिंग फेज इन इंडियन क्रिकेट। So thank you Soumya, thank you Ranjit once again for all your insights, and thank you all the fans for watching us. Stay tuned to Cricket Next because we will bring you all the updates from the world of cricket.